اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بھی، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو مین چینل ہے وائرل نیوز لائیو، 7 دن کے لیے اس کو یوٹیوب نے بند کیا ہے کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ ہی سچ بتا دیا تھا، اس لیے اسٹرائک مار دی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ منڈے سے شروع ہو جائے گا۔ مگر آپ اس چینل کو بھی، جو ہمارا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر اس کو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم اس پر اپنی خبریں ڈالیں گے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج آپ جانتے ہیں ملک بھر میں ووٹوں کی گنتی ہونے والی ہے۔ ملک کی کئی ریاستوں میں نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تشدد، دنگے فساد اور جھگڑوں سے نمٹنے کی تیاری بھی کر دی گئی ہے، کیونکہ کئی علاقوں میں باقاعدہ تشدد پھوٹ پڑتا ہے ووٹوں کی گنتی کے موقع پر۔ مغربی بنگال سمیت کئی ریاستوں میں سخت ترین چوکسی کر دی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس کانفرنس لے کر سارے حالات کو بیان کیا۔ لوگوں کی نظریں اب حقیقی نتائج اور ایگزٹ پولز کی پیشن گوئیوں پر مرکوز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ملک کی رکھیل اور گودی میڈیا نے ایگزٹ پولز کے ذریعے سے کیا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزٹ پول اس وقت گودی میڈیا کے ایگزٹ پول، جنہیں راہل گاندھی نے مودی پول کہا ہے، 2 دن پہلے ایگزٹ پول کے ذریعے سے ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ 2 دن پہلے یعنی پورا تقریباً 1 مہینہ تک بی جے پی کی حالت خراب تھی، اور 2 دن پہلے ایگزٹ پول بی جے پی کا نتیجہ ظاہر کر رہے ہیں اور تیسری مرتبہ مودی جی کو وزیر اعظم بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو لوگ سمجھ گئے کہ شاید مشینوں کا کام پوری طریقے سے کر لیا گیا ہے۔ اس لیے بی جے پی کو یقین ہو گیا ہے اور بی جے پی نے اپنے رکھیل گودی چینلوں کے ذریعے سے ایگزٹ پول بی جے پی کی تیسری مرتبہ جیت اور مودی جی کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا اشارہ ایگزٹ پول کے ذریعے سے پہلے ہی کر دیا، تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے اور لوگ یہ سوچے کہ ہاں پہلے ہی ایگزٹ پول نے بتا دیا تھا۔ لیکن اروند جی کیجریوال، ممتا دیدی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی اور تمام ہی نیتاؤں نے کہا ہے کہ ایگزٹ پول کے دعوے جھوٹے اور فرضی ہے۔ خیر، آج تیاریاں مکمل ہو چکی ہے ووٹوں کی گنتی کی، اور ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ شام ہوتے ہوتے انشاءاللہ ہم نتائج آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، راکیش ٹکیت، آپ جانتے ہیں بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے ایگزٹ پول کے رجحانات کو لے کر لب کشائی کی ہے۔ ووٹوں کی گنتی سے پہلے آنے والے ایگزٹ پول کے تعلق سے ای وی ایم پر راکیش ٹکیت نے سوال اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ای وی ایم میں بیٹری یا سیل ڈال سارا کرم کان دھاندلی ہوتا ہے۔ اتر پردیش کے باغپت ضلع کے دورے پر پہنچے کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ اس ملک میں ایگزٹ پول کیا کرے گا جس کا بادشاہ نجومی اور ڈکٹیٹر ہو، یعنی انہوں نے ای وی ایم پر سوال اٹھایا ہے۔ وامن میشرام، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اور ملک کی تقریباً تمام پارٹیوں نے ای وی ایم پر سوال اٹھایا ہے، اور تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جسے کسی بھی طریقے سے ہیک کیا جا سکتا ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور ای وی ایم پر ہمیشہ یہی بات کہی گئی ہے کہ بی جے پی جو سत्ता میں ہے وہ ای وی ایم کو ہیک کرنے کا اور ای وی ایم کا
मिसयूज करने का पूरा प्लान बनाती है और फिर अमित शाह और बीजेपी जितनी सीटें इलेक्शन से पहले कहते हैं उतनी ही सीटें उनको मिलती है। इसका मतलब उनका पूरा प्लान पहले ही से बन जाता है। नाज़रीन, खबर आ रही है कि मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने एग्जिट पोल जो इस वक्त मोदी के रखेल हैं उन तमाम के खिलाफ सोनिया गांधी ने एक बड़ा जुमला कहा और कहा कि इंतजार कीजिए, नताइज रिजल्ट हमारी तवक्को और हमारी उम्मीद के मुताबिक हो गए और एग्जिट पोल के बिल्कुल खिलाफ हो गए। एग्जिट पोल के आने के बाद कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी का पहला बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इंतजार कीजिए, हमें पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट एग्जिट पोल के बिल्कुल उल्टा हमारी तवक्को के मुताबिक होगा। सोनिया गांधी डीएम के दफ्तर में मुनक्किद एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। ये बातें उन्होंने यहां से रवाना होते हुए कही। इससे पहले सोनिया गांधी ने डीएमके के कदावर लीडर एम करुणानिधि को उनके 100वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल ने पेशन गोई की है कि पीएम मोदी मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार में रहेंगे और बीजेपी की जेर क़यादत एनडीए को लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल हो सकती है। कुछ एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दे दी, जबकि ज्यादातर पेशन गोई की है कि बीजेपी की क़यादत वाला इत्तेहाद 350 से ज्यादा सीटें जीत लेगा। ये तादाद हुकूमत बनाने के लिए दरकार 272 नशिस्तों से बहुत ज्यादा है। इस इलेक्शन में कांग्रेस और दीगर इंडिया अलायंस की पार्टियों को तकरीबन 150 सीटें मिलने का अंदाजा एग्जिट पोल ने जाहिर किया है, जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि यह सर्वे ख्याली है, झूठा है और फर्जी है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब तो एक मौलाना ने भी ख्वाब में देख लिया और कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने यह ख्वाब दिखाया कि मोदी जी तीसरी मरतबा वजीर आजम बन रहे हैं। तो इस तरीके से बाकायदा गोदी मीडिया जो है वो माहौल को गलत बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लोकसभा इलेक्शन के नतीजे अभी आए नहीं, आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से पहले ही यह बात सामने आ चुकी है कि 30 से 35 सीटें महाविकास आघाड़ी लेगी, यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एलसीपी शरद पवार, ये 30 से 35 सीटें रहेगी। लेकिन 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें सारा उल्टा बताया जा रहा है, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है। मगर बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी नतीजे आए भी नहीं हैं कि महायुति में फूट नजर आ रही है, यानी बीजेपी, एनसीपी, अजीत दादा, एमएनएस, राज ठाकरे और शिवसेना शिंदे कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में अब आमने सामने हो गए हैं और अभी नतीजे आए भी नहीं है कि महाराष्ट्र महायुति में यानी बीजेपी और एलसीपी, अजीत दादा और शिवसेना शिंदे ग्रुप में फूट बड़ी अंदाज में नजर आ रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हौसले एग्जिट पोल के आने के बाद अब बुलंद हो गए हैं। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश हो गए थे, बेहोशी के आलम में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि पूरी तरीके से बीजेपी मुल्क से साफ हो रही है। लेकिन जैसे ही गोदी रखेल चैनल्स ने एग्जिट पोल बीजेपी के जीतने और मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने का नारा लगाया एग्जिट पोल ने, तो अब उनके हौसले बुलंद हो गए और खबरें आ रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिहाइश गाह से बीजेपी दफ्तर तक मोदी का रोड शो होगा, यानी जीत की खुशी में इतना बड़ा रोड शो मोदी जी करेंगे। एग्जिट पोल के नताइज के बाद बीजेपी अब एक शानदार जश्न की तैयारी का मंसूबा बना रही है और माना जा रहा है कि वजीर आजम मोदी 2024 में लोकसभा इंतखाबात जीत जाते हैं तो एक शानदार रोड शो होगा। जराये का कहना है कि वजीर आजम मोदी का यह शानदार रोड शो लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी के दफ्तर तक 2-3 लाख लोगों के साथ मुनक्किद किया जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से एक अजीब खबर सामने आ रही है कि क्रिकेट खेलते हुए एक खिलाड़ी ने छक्का लगाया, 6 मारा और फिर अचानक गिर गया और उस बल्लेबाज की, उस खिलाड़ी की मौत हो गई। यह वाकया एक फार्म हाउस में क्रिकेट मैच के दौरान पेश आया।
इस पूरे वाकये की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। छक्का लगाने के बाद खिलाड़ी कैसे खड़ा हुआ और फिर अचानक गिरकर उसकी मौत हो गई। यह वाकया काशी मीरा के मीनाक्षी नगर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 2 जून की दोपहर काशी मीरा के मीनाक्षी नगर में वाक़ फार्म हाउस में बनाए गए ट्रिफ में एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया था। इस दौरान कंपनी का एक नौजवान एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहा था। क्रिकेट मैच के दौरान बैटिंग कर रहे 42 साल राम गणेश तिवारी ने छक्का लगाया। चंद सेकंड के बाद वो अचानक जमीन पर गिर गया। जैसे ही खिलाड़ी जमीन पर गिरा, उसके साथ क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों ने उसे उठाया और करीबी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। खेलते हुए शख्स की अचानक मौत के बाद यह वाकया मौजूए बहस बन गया है कि इतना अच्छा शख्स चंद मिनटों में अपनी जान कैसे गंवा बैठा। लोग कह रहे हैं कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है कि मजदूर को जगाने के लिए उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात ने लोगों को चौंका दिया है। एक मजदूर दोपहर का खाना खाकर सो गया तो उसे जगाने के लिए एक शख्स ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजदूर के अहले खाना ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की इत्तला दी है। न्यूज पोर्टल आज तक के मुताबिक जिस शख्स के चेहरे पर पेशाब किया गया उसका नाम राजकुमार रावत है और वो मजदूरी का काम करता है। दोपहर में वो खाना खाकर काम से थक कर सो रहा था। इल्जाम है कि उसे जगाने के लिए मुलजिम संजय मौर्य ने उसके चेहरे पर पेशाब किया। इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको याद होगा कि इस तरह का वाकया इससे पहले गालिबन मध्य प्रदेश में पेश आया था। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है कि कोल्हापुर में कार ने 4 लोगों को पीछे से उड़ा दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह कार साबिक वाइस चांसलर चला रहे थे। चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक कोल्हापुर शहर में खौफनाक हादसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसा शहर के साइबर चौक में पेश आया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कार ने 4 अफराद को कुचल दिया। ड्राइवर समेत 3 लोग वहीं पर मौत का शिकार हो गए और 5 लोग जख्मी हुए हैं। मालूम हुआ है कि 3 2 पहिया गाड़ियों और एक कार को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हादसे की वजह से चौक में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसी हादसे की खबर लगातार सामने आ रही है और गुज़िश्ता कल एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई से हाजियों को छोड़कर आने वाले समृद्धि हाईवे पर हादसात का सिलसिला अभी भी जारी है। गाड़ी खड़े ट्रक से टकराई। जो लोग हाजियों को छोड़कर बंबई से आ रहे थे और अमरावती जा रहे थे, गाड़ी खड़े ट्रक से टकराई। 3 अफराद उसमें शहीद हुए हैं। मुंबई से आज़मीन हज अमरावती वापस आ रहे थे। इस हादसे की वीडियो और इस हादसे के फोटो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक दिन में 10 फ्लाइट रखने से अफरा तफरी का माहौल है। हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। हज हाउस में भी वही सूरत हाल है। रोजाना 3000 आज़मीन हज को बुलाने की शिकायत सामने आ रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज पर जाने वाले आज़मीन हज को इमसाल भी जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कल मेरे सास और ससुर ये भी हज को गए हैं। वहां पर मेरे खानदान के लोग जब उन्हें रवाना करने के लिए गए, मौलाना रिजवान फलाही ने बताया कि एयरपोर्ट पर भी बड़ा बुरा हाल है और हज हाउस में भी बड़ा बुरा हाल है। और वैसे भी आप जानते हैं कि 3000 हाजियों को अगर एक दिन में बुलाया जा रहा है तो एक हाजी के साथ में
10 लोग जाते हैं अगर छोड़ने के लिए, जो हमारी गंदी आदत है, तो आप अंदाजा लगाए कि वहां पर कितना बुरा हाल लोगों का भी हो रहा होगा, जो जाने वाले बेवकूफ़ी करते हैं उनका भी बुरा हाल हो रहा होगा। और रिपोर्ट आ रही है कि एयरपोर्ट पर हाजी काफ़ी परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया इंतजाम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जमीयत उलमा से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने सीनियर्स एडवोकेट्स की सर्विस खिदमात हासिल की। फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अगले महीने हतमी समाअत मुतवक्के है। गेटवे ऑफ इंडिया बम धमाका मामले में 2003 मुंबई के मशहूर जवेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया नामी इलाकों में होने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के इल्जाम में बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से 3 मुल्जिमीन की फांसी की सजाओं की तस्दीक किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की गई अपील पर गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कसीर रुकनी बेंच के जस्टिस ने रजिस्ट्री को हुक्म दिया कि वो फरीकैन को मुकदमे के मुताल्लिक कागजात डिजिटल फॉर्म में मुहैया कराए, यानी कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तमाम दस्तावेजात को PDF की शक्ल में तैयार करके फरीकैन को मुहैया कराए ताकि मुकदमे की अगली समाअत पर फरीकैन हतमी बहस कर सकें। फांसी की सजा पाने वाले मुल्जिमीन फहमीदा सैयद, सैयद हनीफ और इशरत शफीक की जानिब से अदालत में सीनियर एडवोकेट कामिनी जायसवाल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फर्रुख रशीद के हमरा पेश हुई और अदालत से गुजारिश की कि वो रजिस्ट्री को हुक्म दे कि वो मुकदमे के मुताल्लिक तमाम कागजात डिजिटल शक्ल में दिफाई वकला को मुहैया कराए ताकि मुल्जिमीन की अपीलों पर हतमी बहस शुरू की जा सके। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।